Okay, today's topic for our lecture is compound pendulum and center of percussion. See, in your laboratory, you have already conducted an experiment on compound pendulum. So everybody basically knows what a compound pendulum is. It is any rigid body which, when made to oscillate like a pendulum about an axis passing perpendicular to a vertical plane and through the body itself, is called a compound pendulum. So if you look at this figure, the reason for selecting this absurd type of figure is to show that the rigid body could have any shape, any type of rigid body. It could be a stone, it could be a metallic piece, it could be some rigid cardboard material, wood, anything. Any rigid body of any shape, the only thing is it has to be suspended about a point passing through the body itself. So you see O is the point at which it is suspended, and this body is now swinging like a pendulum. Point G is the center of gravity, M is the mass, small l is being used to represent the distance between the point of suspension O and the center of gravity G. Now, the aim of this discussion, or the discussion that we are going to conduct now, is to find the omega n, finding omega n of a compound pendulum. That means it's a derivation now. You have to derive it. Okay. Now let us just have a look here itself. I have taken an instantaneous position like this. The compound pendulum is at an instantaneous position, and the axis of the compound pendulum is like this now. This is the axis now. This was the resting position or the neutral position of the compound pendulum. This line was the resting position. This is the instantaneous position that we have captured. And at the moment that we captured this instantaneous position, you measured the angle theta. And why are you measuring angle theta? Because for the motion of a compound pendulum, you observe that it is in the shape of a circular arc. This is how the pendulum is oscillating. So your variable of motion is neither x nor y. It is that of a rotary variable. So the rotary variable is selected as theta. And another thing that you observe is that from the mean position, you are taking the measurement of theta in the counterclockwise direction. So as soon as you made this measurement of theta, from now onwards, your sign convention for this problem is that all counterclockwise rotary vectors will be positive and all the rotary parameters which are clockwise will be negative. So this is the sign convention that we are going to use now. Now, as soon as you see that your motion is rotary, there is another thing that you will do. You will decide कि मैं अब कौन सा method apply करूं. And once again, you have three options for you: energy method, Newton's second law, and D'Alembert's principle. And in most of the textbooks, whichever textbook you happen to take up in order to check this out, you will see that people have preferred Newton's second law to develop the equation of motion for compound pendulum. Although you can apply this also, you can apply this also. ठीक है, आप एक homework की तरह भी अगर those who are interested, obviously you can take it up as an exercise कि भाई सेकेंड लॉ से तो अपन अभी क्लास में डिराइव कर ही लेंगे, एक बार एनर्जी मेथड से भी करके
चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल और न्यूटन्स लॉ ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, ये आपको पता ही है। तो इसलिए अगर न्यूटन्स लॉ से करना आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से करना आता ही है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ और डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल में क्या फर्क है? न्यूटन्स लॉ कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस, और डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहता है समेशन ऑफ फोर्सेस माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही तो चीज है। तो इसीलिए अगर कोई डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से करने को कहे आपसे तो ये फॉर्मूला लगा देना, और न्यूटन्स लॉ से करने को कहे तो ये फॉर्मूला लगा देना, एक ही चीज है। एनर्जी मेथड थोड़ा सा अलग पड़ता है। For some cases energy method is easier and for some cases Newton second law is easier। तो इस वाले केस में न्यूटन का सेकेंड लॉ थोड़ा सा आसान है, तो इसी को लेकर के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब अपनी बात हुई रोटरी मोशन है, वेरिएबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव है। ये अभी इस पर्टिकुलर केस के लिए ये सारे पैरामीटर फिक्स हो गए। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटरी मोशन सेज not mass into acceleration but what? Moment of inertia into angular acceleration must be equal to what? Linear motion होता तो m into a equal to sum of linear forces होता, और rotary motion है तो I into alpha equal to sum of moments। So this is what we have to start with। ठीक है, चूंकि रोटरी मोशन है so we will be starting with I alpha is equal to sum of moments। अब अपन को ये मोमेंट्स जो होता है पहले अपन इसको चेकआउट करते हैं। मोमेंट किस चीज का निकालते हैं? मोमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर फोर्सेस। तो अब पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके कंपाउंड पेंडुलम पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है और उन फोर्सेस का मोमेंट लेना है। ठीक है, तो अगर मैं कंपाउंड पेंडुलम का, अब यहां पर देखो, दिस इज योर कंपाउंड पेंडुलम एंड दिस इज द रैंडम पोजीशन दैट वी हैव कंसीडर्ड एंड इट इज हैंगिंग फ्रीली। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, कोई इसको हिला नहीं रहा है, चला नहीं रहा है, ये अपने आप ही ग्रेविटी के अंदर चलते जा रही है। तो जहां तक मैं समझता हूं इसमें सिर्फ एक ही फोर्स है, अ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स mg which will act at the center of gravity capital G, और इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है इसमें। ये बात सही है कि नहीं है, बता दो आप। और कोई फोर्स आपको दिख रही है इसमें? हालांकि मैं कुछ और फोर्सेस इसमें आपको बता सकता हूं, बट देयर इज नो नीड फॉर दैट। देयर इज ओनली फोर्स, one single force mg that will be acting vertically downward from point G। ठीक है, तो अब एक ही इकलौती फोर्स है और इस फोर्स का अपन को मोमेंट लेना है। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन थी ये समेशन ऑफ m। तो समेशन ऑफ m की तो अब जरूरत ही नहीं है, अपन बोलेंगे सीधे सीधे मोमेंट, एक ही फोर्स है तो एक मोमेंट आएगी। ठीक है, अच्छा अब अपन को ये और देखना है कि जब रोटरी मोशन होता है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, ये सब किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट लेना पड़ता है। ये अपन ने पहले भी क्लास में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें देखा था। सो नाउ somebody look at this figure and tell me which point should be the ideal point for taking the reference। इस फिगर को देख करके बताओ कौन से पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं जिसके अबाउट सारे रोटरी मोशंस की रोटेशन ली जाएगी। बताओ कौन सा पॉइंट लेंगे भाई? एनीबॉडी? किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स निकालूं, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, किस? ओ पॉइंट के अबाउट, बिकॉज ओ इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पेंडुलम्स के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है सबसे बेस्ट अपना ओ ही होता है। ठीक है, तो अब ओ पॉइंट के अबाउट
मेरे को ये भी बता दो कि ये जो वर्टिकली एक्टिंग फोर्स है नीचे को mg, इसका मोमेंट कितना है और ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी बता दो। सर mg l sin थीटा वेरी गुड, mg l sin थीटा। क्यों, देखते हैं। This is the neutral position, this is your point O, and currently this is the condition of your pendulum. So your axis is going like this. This was point G, and we have already declared this distance as small l. This angle is theta, this is mg, and I am asking you to find this perpendicular distance. So if this is theta, this length is l, then this distance must surely be L sin theta. So now the moment is force into perpendicular distance. So the moment value becomes equal to mg L sin theta. अब ये और बता दो, ये प्लस है कि माइनस है? प्लस सर। ये प्लस है, यस सर। ये देख लो भाई, नहीं सर माइनस। माइनस है। O पॉइंट यहां पर है, mg फोर्स यहां से जा रही है, तो आप क्या करोगे? mg फोर्स पे O पॉइंट से परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा, तो mg फोर्स को एक्सटेंड करोगे और O पॉइंट को सेंटर इमेजिन करते हुए यू विल कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी डिस्क, and then you will imagine how will this imaginary disk rotate if this mg force touches it and moves downward. So you see that this disk is going to rotate in the clockwise direction, and clockwise direction has to be taken as negative. ठीक है? So by applying Newton's second law, what I get is I into alpha was supposed to be equal to the singular moment acting in this case, and I can replace this moment now with mgl sin theta with a negative sign. So it is minus mgl sin theta. अल्फा को कैसे लिख सकता हूं? अल्फा को किससे रिप्लेस करूं? किसी को याद है तो बताओ। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ओमेगा तो हो गया डी थीटा बाई डी टी। अल्फा क्या हुआ? थीटा डबल डॉट। इट इज डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और फॉर सिंप्लिसिटी थीटा डबल डॉट। ठीक है, चलते हैं आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है, इसके बारे में अपन को अभी कुछ नहीं पता। अपन को सिर्फ इतना पता है कि इस स्विंगिंग रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कौन से पॉइंट के अबाउट है? ओ के अबाउट है कि जी के अबाउट है? जी के अबाउट। जी के अबाउट पता है सर, ओ के अबाउट नहीं पता। जब आपने सारे मोमेंट्स को ओ के अबाउट लेने का निर्णय ले लिया था, उसी टाइम पे आपने ये निर्णय भी लिया था कि आई भी ओ के अबाउट होगा, अल्फा भी ओ के अबाउट होगा, मोमेंट भी ओ के अबाउट होगा। सो एवरीथिंग विच इज रोटरी इन नेचर यू हैड डिसाइडेड टू टेक अबाउट पॉइंट ओ। तो अभी आई ओ पेचीदा है, थोड़ा सा नहीं पता लग रहा। आई ओ कहां से मिलेगा? आपको सिर्फ मास पता है इस बॉडी का, ना इसका शेप पता है, और कोई से भी एक रैंडम पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन मैं अभी कहां से बना के लाऊं? आई डोंट नो। तो अब इसका एक तरीका है। लेट अस सी दिस रिजिड बॉडी इन एन आइसोमेट्रिक व्यू। ये मैं इस रिजिड बॉडी का थोड़ा सा टेढ़ा टिल्टेड व्यू बना रहा हूं, ठीक है? दिस इज योर पॉइंट ओ,
this is your point G, and the oscillations of the object were occurring about this vertical axis, sorry, this horizontal axis passing through point O. इस ऑब्जेक्ट के पीछे से एक एक्सिस आई है और वो O पॉइंट से उसको भेदती हुई ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली बाहर को निकल गई है। इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है, और इसी एक्सिस के अबाउट मुझे इस ऑब्जेक्ट का IO चाहिए। क्या करूं? तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक अपनी खुद की एक्सिस बनाऊंगा जो कि इस O से निकलने वाली एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन निकल रही हो G पॉइंट से। अब इस पॉइंट से निकलने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IG, दिस विल बी इक्वल टू m kg स्क्वायर। ये पता है क्या आपको? भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको किसी चीज की पता हो तो उसके थ्रू कोई सी भी एक्सिस निकाल दो, और उस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे कोई पूछे तो आप हमेशा ये क्लेम कर सकते हो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो एम के स्क्वायर होगा। के क्या चीज है? रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट पॉइंट G, ठीक है। इफ यू रिमेंबर योर एक्सपेरिमेंट, आपने kg की वैल्यू निकाली थी कि नहीं निकाली थी कंपाउंड पेंडुलम के लिए? Yes, sir, निकाली थी। kg की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाली थी ना कंपाउंड पेंडुलम के लिए, यही है वो kg। So IG can be written as equal to m kg square. Now applying parallel axis theorem, we already know that the distance between O and G is L. तो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस अपन को पता है L है। मास ऑफ द बॉडी m है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि इफ यू वांट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through O, and if this axis is parallel to the axis passing through center of gravity G, then IO can be given by IG को तो पूरा ले लो plus mass of the entire object multiplied by the square of the distance between two parallel axes. This is the statement of parallel axis theorem for moment of inertia. ठीक है, ये हो सकता है कुछ लोगों को याद हो, कुछ लोगों को नहीं याद हो। आज लैब की क्लास में भी मैंने थोड़ा सा इसको रिपीट कराया था सेक्शन ए के लिए। सो सम ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम जरूर विजिट करें। सो एनीवे, सिंस दिस इज द फॉर्मूला, नाउ कैन आई से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू IG लेना है तो मैं m kg स्क्वायर ले लेता हूं, प्लस m इंटू एल स्क्वायर लिखना है तो प्लस ml स्क्वायर कर देता हूं। सो माई IO इज नथिंग बट m इंटू kg स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां तक ठीक है क्या भाई? कोई एक जना मेरे को जिसको समझ में आ गया हो वो एक बार रेसिप्रोकेट कर दे, सो एटलीस्ट आई नो दैट समबडी इज फॉलोइंग। यस सर। ठीक है क्या? यस सर। ओके, सो आई नॉट का एक एक्सप्रेशन अपन को अब मिल गया, कम से कम कुछ तो लिखने को है। सो वी गो बैक टू आवर इक्वेशन नाउ। दिस इज आवर इक्वेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ चल रही थी। I naught is now m into kg square plus l square times theta double dot. अब ये माइनस एम जी एल साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं, सो दिस बिकम्स प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0. माई डिफरेंशियल इक्वेशन इज रेडी। डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है थीटा में।
Now what I have to do is I have to compare it with the standard differential equation of simple harmonic motion. और थीटा में अगर मेरे से कोई SHM की इक्वेशन पूछे तो मैं तो आंख बंद करके बनाना जानता हूं, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स थीटा इक्वल टू 0। क्या मैं अभी इस सिचुएशन में इसको कंपेयर कर सकता हूं? थीटा डबल डॉट है, लेकिन थीटा डबल डॉट से कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, चलो वो तो अपन डिवाइड कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम आ रही है, यहां साइन थीटा बैठा है और यहां थीटा चाहिए, सो दिस इज नॉट going to be okay for us. You cannot compare it. So this differential equation is non-linear क्योंकि इसमें sin theta है, and this differential equation of your standard SHM is linear. तो ये तो बात बिल्कुल नहीं बनी। तो अब क्या करोगे, आप एक दूसरा तर्क लेके आओगे, आप ये कहोगे कि भाई एक काम करो, ये जो इतना बड़ा स्विंग दिया है ना तुमने इसको थीटा को, इसको थोड़ा छोटा कर लो। छोटा करने का मतलब, if you assume theta that it is very near to 0, that when theta tends to 0 you can easily replace sin theta because it now tends to theta. जब theta tends to 0 हो जाता है तो sin theta tends to theta हो जाता है। So this replacement you are going to make and you specifically state here कि okay my theta is very near to 0. So now with full confidence I can remove this sin theta and put a theta here. तो चलो अब ये रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब अपन को क्या करना है, ये थीटा डबल डॉट के ऊपर से ये कांस्टेंट को हटाना है। ठीक है, तो इसको भी खत्म कर देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय दिस क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम थीटा डबल डॉट प्लस mgl अपॉन m इंटू kg स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टाइम्स थीटा इक्वल टू 0। m और m कैंसिल हो गए। Now what remains is theta double dot plus gl upon kg square plus l square times theta equal to 0. And now you compare it with the standard differential equation. Theta double dot plus omega n square times theta equal to 0. सारी चीजें अब चेकआउट होती है, सो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। सो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एल अपॉन के जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इसका डेरिवेशन है। आप लोगों ने अपने लैब एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज किया था। टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड आई नो इज 2 पाई अपॉन ओमेगा एन। तो इसको 2 पाई से ओमेगा एन इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, यू गेट 2 पाई अंडर रूट के जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी इंटू एल। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू यूज्ड इन योर लैब। आप अपना डेरिवेशन यहां पे भी स्टॉप कर सकते हैं। आपसे ओमेगा एन पूछा गया था, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। बाकी की जो मैंने यहाँ पे पूरा डेरिवेशन और नोट्स यहाँ पे लिख रखा है, आपको इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए है। अदरवाइज यू हैव टू कीप योर आंसर्स दैट यू राइट इन योर आरटीयू पेपर एज कंसाइज एज आई हैव रिटन हियर। आपको जितना मैंने लिखा है इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, सेंटर ऑफ परकशन फॉर अ कंपाउंड पेंडुलम। सेंटर ऑफ परकशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट पर्टेन्स टू एनी इंपैक्ट डिलीवर्ड टू अ कंपाउंड पेंडुलम। तो सबसे पहली बात तो है, ये सेंटर ऑफ परकशन जो चीज है ये कंपाउंड पेंडुलम से रिलेशन रखती है। तो आप सेंटर ऑफ परकशन को बिना कंपाउंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट समझे नहीं समझा सकते। तो ये बोलता है पहले तो एक कंपाउंड पेंडुलम लेके आओ। तो बोले ये रे हम कंपाउंड पेंडुलम ले आए, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और रिजिड बॉडी लटका दो उसको, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया।
अब क्या करना है, फिर ये बोलता है कि इस कंपाउंड पेंडुलम के किसी भी पॉइंट पे एक ठोकर मारो। सो यू ब्रिंग अ हैमर, एक हथौड़ा जैसा कुछ भी ले आओ, या अपने हाथ को ही मुट्ठी बना करके एक मुक्का मारो यहाँ पे, यू हिट द कंपाउंड पेंडुलम हियर। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह का हिटिंग का केस, आप बोलोगे यार बड़ा एब्सर्ड सा एग्जांपल है, आप कुछ रिजिड बॉडी लेके उस पे मुक्का मारो, बट दिस इज नॉट एक्चुअली एज एब्सर्ड एज इट सीम्स। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है इसका। आपने ये गांव के स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं, वहां पर एक टाइम था जब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होती थी। इवन वो तो छोड़ो, अपने एसकेआईटी में भी कई कई बार यूज हुआ है। हाथ से बजाने वाली घंटी देखी है क्या आपने? एक मेटल का प्लेट लटका देते हैं और उसके ऊपर एक मेटल का छोटा सा हथौड़ा लेकर के टन 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 मारता है आदमी। ठीक है, दैट इज अ कंपाउंड पेंडुलम। जो लटका रखा है मेटल का प्लेट, वो रिजिड बॉडी हो गई, कंपाउंड पेंडुलम हो गया, और आप उस पे ये छोटा सा एक डंडा लेके या छोटा सा मेटल का पीस लेके जो आप बार बार हिट कर रहे हो, यू आर एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग दैट सेम कॉन्सेप्ट हियर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं ये समझा रहा हूं, इफ यू अप्लाई एन इम्पैक्ट at some point on a compound pendulum which is suspended from point O, ठीक है, and if that point happens to be below this point G, तो आपका ये जो सस्पेंशन पॉइंट है वहां पर आपको एक झटका फील होगा। बिल्कुल होगा, आपने इसको लटका रखा है किसी चीज से। अब बेसिकली आप लटकी हुई चीज को पीट ही तो रहे हो नीचे से, तो जब पीटोगे तो ऊपर जहां पे आपने लटका के जिस चीज को पकड़ रखा है वहां पे झटका आएगा। तो सेंटर ऑफ परकशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बोलता है सेंटर ऑफ परकशन कि हर कंपाउंड पेंडुलम पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेंटर ऑफ परकशन पी कहा जाता है, कि अगर मैं कंपाउंड पेंडुलम को लटका के पी पॉइंट पे ठोकर मारूं तो मुझे ओ पॉइंट पे झटका फील नहीं होगा। अगर मैं पी पॉइंट के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पे ठोकर मारूं तो हर बार मुझे झटका फील होगा। सो फॉर एवरी कंपाउंड पेंडुलम दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग योर क्रिएटिविटी, भाई किसी भी चीज को लटका के बना सकते हो कंपाउंड पेंडुलम, तो हर कंपाउंड पेंडुलम के लिए एक पॉइंट ऐसा होता है उसकी बॉडी पे जो कि ओ से नीचे जाने वाली वर्टिकल लाइन जो है उस लाइन पर मौजूद होता है वो पॉइंट। और उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप ऑब्जेक्ट को हिट करते हो बॉडी के साइड से तो ओ पॉइंट पे झटका नहीं आता। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ परकशन। ठीक है, अब एक सेंटर ऑफ परकशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो मैंने यहां पर दे रखी है। ठीक है, बट दिस माइट बी अ लिटिल बिट टू कंफ्यूजिंग फॉर यू। इसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन एक बार अब मैं आपको जो चीज समझाऊंगा उसके बाद आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की क्या बात करिए। क्या सेंटर ऑफ परकशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? एक और बार रिपीट करता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेंटर ऑफ परकशन कंपाउंड पेंडुलम पे हमेशा होता है। किसी भी चीज को कंपाउंड पेंडुलम बनाया तो उसका एक सेंटर ऑफ परकशन आपको जरूर मिलेगा, वो पता करना आना चाहिए। और वही अपन अब इस डेरिवेशन से करने जा रहे हैं कि अगर मैं किसी चीज को लटका दूं तो उसका सेंटर ऑफ परकशन मैं कैसे ढूंढ सकता हूं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ परकशन है क्या चीज? किसी भी कंपाउंड पेंडुलम को लटकाने पे वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर मैंने बिल्कुल पिन पॉइंटेड अटैक किया तो मेरे कंपाउंड पेंडुलम के सस्पेंशन पॉइंट पे झटका फील नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे कंपाउंड पेंडुलम को किसी ने हाथ ही नहीं लगाया है। वो स्विंग होगा, वो पेंडुलम की तरह झूलना जरूर चालू कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसको ठोकर दी है तो वो झूला जरूर झूलेगा, लेकिन ओ पॉइंट पे झटका नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्या लगेगी। पहले तो एक ऑब्जेक्ट ले लो,
आप ये समझो कि मैंने अभी इसको कहीं लटका नहीं रखा है, बस मैंने इस पे एक ओ पॉइंट मार्क कर दिया है, ठीक है। इट इज नॉट सस्पेंडेड एट पॉइंट ओ, इट इज सिंपली अ मार्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये लाइन भी आप मार्क कर दो और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क कर दो, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताना खुद का लॉजिक यूज करके, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब मैं अगर इस पॉइंट पे ठोकर मारूं, एक फोर्स लगाऊं F, तो सोच के बताना ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ आगे जाएगा या सिर्फ घूमेगा, आगे नहीं जाएगा, या बिल्कुल ऐसा का ऐसा आगे को चल देगा, पूरा ऑब्जेक्ट खड़ा का खड़ा आगे चल देगा और बिल्कुल नहीं घूमेगा। इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वापस से मैं आपको तीन ऑप्शंस बता रहा हूं। आपने बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन पे ठोकर मारी है इस ऑब्जेक्ट को। पहला ऑप्शन है ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ आगे जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ये आगे नहीं जाएगा, जी पॉइंट के अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगा। तीसरा ऑप्शन है ये घूमेगा नहीं, बिल्कुल जैसा खड़ा है वैसा का वैसा बिल्कुल आगे को धक्का खाके सीधा जाएगा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग थर्ड टू ऑप्शन। योर इंट्यूशन? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है? यस सर। बिल्कुल सही आंसर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन पे जब ठोकर मारते हैं या इंपैक्ट देते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उसमें रोटेशन की कोई गुंजाइश होती नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, अगर मैं यही ठोकर जी पॉइंट से नीचे कहीं पर भी एक अपनी मनमर्जी की पोजीशन पे, ठीक है, मेरे को पता नहीं है, देखो अभी सेंटर ऑफ परकशन का कोई नॉलेज नहीं है मुझे, मैंने तो बस बोला कि मैं अब जी पॉइंट पे नहीं मारूंगा, मैं अब जी पॉइंट से नीचे मारूंगा, ठीक है। तो मैंने अब की बार यहां ठोकर मारी। अब तीन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वापस से मैं ऑप्शन गिनाता हूं। रोटेशन विथ ट्रांसलेशन, सेकेंड ऑप्शन ओनली रोटेशन अबाउट पॉइंट जी, एंड थर्ड ऑप्शन नो रोटेशन सीधा ट्रांसलेशन। सर जी पॉइंट के अलोंग रोटेशन करेगा और ट्रांसलेशन भी करेगा। बिल्कुल सही इंट्यूशन है आपका। ये आगे भी जाएगा क्योंकि भाई कुल मिलाकर के बॉडी पे एक लात तो पड़ी है तो थोड़ा सा आगे को तो सरकेगा ही, लेकिन ये ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा। समझ गए आप? ये इसका जो मोशन होगा जी पॉइंट के अबाउट रोटेशन भी होगा और रोटेट करता हुआ ऐसे आगे को जाएगा, स्पाइरलिंग होता हुआ आगे जाएगा। तो अब अपन इसके मोशन को समझ पा रहे हैं। जी पे टक्कर मारी तो बिल्कुल सीधा सीधा आगे जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा खड़ा खड़ा आगे को चला जाएगा। जी पॉइंट से नीचे को टक्कर मारी तो ये घूमता हुआ आगे जाएगा। अच्छा, जी पॉइंट से ऊपर टक्कर मारू तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भी वही रहेगा। सर वो उल्टा घूमेगा, बाकी सब सेम रहेगा। बिल्कुल सही कहा। अब भी ये घूमता हुआ आगे जाएगा लेकिन जो घुमाव होगा ये उल्टे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये और क्लियर करा दो, जी पॉइंट से नीचे टक्कर मारूंगा तो आगे तो जाएगा लेकिन इसका घुमाव जो होगा वो किस पॉइंट, मतलब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर। वापस से सोच के बताओ, जी पॉइंट से नीचे टक्कर मारी तो ये किस डायरेक्शन में घूमता हुआ आगे जाएगा, क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एंटी घूमेगा। क्लॉकवाइज? घूमता हुआ, क्लॉकवाइज घूमता हुआ आगे जाएगा। जी पॉइंट से ऊपर टक्कर मारूं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ आगे जाएगा। जी पॉइंट पे टक्कर मारूं तो घूमेगा नहीं, सीधा आगे जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो अब एक बात तो फिक्स हो गई कि अगर इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी टक्कर मारो तो ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पे एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन का मतलब है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस ट्रांसलेटरी मोशन विच विल डेफिनेटली बी देयर। ये तो क्लियर हो गया।
कि भाई आप कहीं पे भी टक्कर मारो ऑब्जेक्ट को, ऊपर, जी से नीचे या जी के पॉइंट पे, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट पे आएगा, और हर पॉइंट पे आएगा तो ओ पॉइंट पे भी आएगा और लेफ्ट साइड की तरफ को ही आएगा। तो ए टी तो मैंने बना दिया कि भाई आप इस कंपाउंड पेंडुलम को कहीं पे भी लटकाओ चाहे नहीं लटकाओ, ठोकर पड़ी तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो ओ पे बनता ही बनता है, वो मैंने बना दिया। अब आती है रोटेशन की बात। अब अपन ये केस कंसिडर कर रहे हैं, ट्रांसलेशन तो खत्म कर दिया। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी कि अब ये पूरा ऑब्जेक्ट जी पॉइंट के अबाउट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। इफ योर ऑब्जेक्ट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, तो ओ पॉइंट का जो लीनियर एक्सेलरेशन है रोटेशन के कारण, वो इधर को है या इधर को है, लेफ्ट को है कि राइट को है? लेफ्ट सर। लेफ्ट की तरफ होगा। तो इस एक्सेलरेशन को मैं एक्सेलरेशन इन द लीनियर डायरेक्शन बट ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट को ए आर लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा बॉडी का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो ए आर की डायरेक्शन होगी, ए आर का मतलब क्या है, ओ पॉइंट पे एक्सपीरियंस किया जाने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो ए आर से लिख रहा हूं, दैट विल बी इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, ठीक है। अब आप कंपाउंड पेंडुलम की स्थिति देखो। कंपाउंड पेंडुलम पे अपन ठोकर कहां पे मार रहे हैं? लेट अस लुक एट दिस। ये देखो, सेंटर ऑफ परकशन आपको हमेशा जी पॉइंट से नीचे मिलता है, ठीक है। तो आप जी पॉइंट से नीचे ही टक्कर मारने की कोशिश करोगे, और जी पॉइंट से नीचे को अगर आपने टक्कर कहीं पर भी मारी, तो आपके ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट एट पॉइंट ओ राइट साइड को होगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको? यस सर। अब इन बातों को लेते हुए अपन सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि आपने ये कहा कि कंपाउंड पेंडुलम पे एक ऐसा पॉइंट पी होता है जिस पे अगर मैं ठोकर मारूं तो मेरे ओ पॉइंट पे झटका फील नहीं होगा। लेकिन अब मुझे यह भी पता है कि अगर पी पॉइंट जी पॉइंट से नीचे है, तो ओ पॉइंट पे जो एक्सेलरेशंस आती हैं, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो ए टी लेफ्ट की तरफ को है, और रोटेशनल एक्सेलरेशन ए आर राइट की तरफ को है। तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है, फॉर द कंडीशन दैट नो जर्क, जर्क का मतलब झटका, विल बी एक्सपीरियंस्ड at pivot point O, the condition or the condition of physics is that AR should be exactly equal to AT. ये है मेरी कंडीशन। तो मैंने अपनी पूरी फिजिक्स और लॉजिक लगा करके ये पता किया कि जी पॉइंट से नीचे सेंटर ऑफ परकशन मिलेगा, और सेंटर ऑफ परकशन पे अगर ठोकर जड़ी तो ओ पॉइंट पे झटका फील नहीं होगा। लेकिन अपन को पता है कि जी पॉइंट से नीचे कभी भी ठोकर पड़ती है तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन लेफ्ट को होता है और रोटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट राइट को होता है। तो पी पॉइंट जरूर ऐसा पॉइंट रहा होगा या ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ठोकर मारने से इस ए आर की जो वैल्यू पैदा होती है और ए टी की जो वैल्यू पैदा होती है वो इस तरह से है कि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड दैट मस्ट बी द रीजन व्हाई दे कैंसल आउट ईच अदर एट ओ, and point O does not experience any acceleration, or rather it does not experience any jerk। और इस कंडीशन को लगा करके अपन सेंटर ऑफ परकशन की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया है, विच आई होप यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, तो अब आप
इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ परकशन कहाँ पे यूजफुल आता है इसका एक एग्जांपल मैं बता दूंगा अभी, लेकिन ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है फाइंडिंग पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, ये चीज जो मैंने यहाँ पे डिराइव करके रखी हुई है इसको एक बार आप खुद पढ़ें। ये डेरिवेशन मैंने पूरा डिटेल में कर दिया है, सो यू गो थ्रू दिस। और इसका एक ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन भी है। किसी को अगर ये वाला डेरिवेशन पसंद नहीं है कि भाई यार ये एक्सेलरेशन बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है, मैं नहीं करना चाहता, तो दूसरा एक डेरिवेशन भी है, और ये डेरिवेशन है बाय कंसिडरिंग अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू अ कंपाउंड पेंडुलम। तो एक ऐसा सिंपल पेंडुलम ले लो जिसकी लेंथ जो है उतनी लंबी हो कि वो ओ से लेके सेंटर ऑफ परकशन तक की लंबाई रखता हो। तो अभी सेंटर ऑफ परकशन कहां पर है ये तो पता नहीं है, तो आप इस एल को पता कर लो, ठीक है, एंड यू कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ दीज टू एंड यू ऑटोमेटिकली गेट द एक्सप्रेशन ऑफ वाई। और वाई क्या चीज है? वाई इज द लोकेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ परकशन बिलो पॉइंट जी। जी से कितना नीचे आपका सेंटर ऑफ परकशन मिलेगा वो वाई डिस्टेंस है। तो आपको अगर वाई पता लग गई तो आपको सेंटर ऑफ परकशन भी पता लग गया, ठीक है। सो यू गो थ्रू दीज डेरिवेशंस व्हिच अकॉर्डिंग टू योर लेवल मस्ट बी फेयरली एविडेंट। और अगर आपको नहीं समझ में आता देन यू टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास। अपन अगली क्लास में आगे चलने से पहले इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। और आप इस एक्सप्रेशन को याद रखें, प्लीज रिमेंबर, मैं जिन भी फॉर्मूलेज को बॉक्स में बंद करता हूं उसका मतलब है कि आपको वो फॉर्मूला रटना है। उस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं या उस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके कोर्स में आ सकता है। तो जो भी है बॉक्स फॉर्मूले आपको जबानी याद होने चाहिए। एंड देयर आर टू अल्टरनेटिव डेरिवेशंस फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ परकशन। इन दोनों में से कोई सा भी आपको जो ज्यादा पसंद आए वो आप याद कर लो, ठीक है, और एक कोई सा भी याद करके उसको प्रेजेंट कर दो। बोथ ऑफ देम गिव द सेम आंसर। अब ये बेसबॉल बैट वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। भाई अपन ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ओ पॉइंट से स्विंग करो और पी पॉइंट पे जर्क लगाओ तो ओ पॉइंट पे जर्क फील नहीं होता। अब इस चीज को जो बेसबॉल बैट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूज कर लेते हैं। देखो ओ पॉइंट पे प्लेयर ग्रिप करता है, हाथ से पकड़ता है ओ पॉइंट, दिस इज अ बेसबॉल बैट। और जो बॉल आती है वो बॉल, अगर बेसबॉल खेलने वाला जो बैट्समैन है अगर उस बॉल को इस तरीके से मैनिपुलेट कर ले कि वो आपके बैट पे एक पर्टिकुलर पैच पे पड़े जो कि सेंटर ऑफ परकशन उसके अंदर आता हो, तो आपके जो बल्लेबाज है उसको झटका ही फील नहीं होगा, बिकॉज यू आर स्विंगिंग इट। सी द बैट इज जनरली स्वंग इन अ रोटरी डायरेक्शन। जब बल्ला घुमाया जाता है तो एक रोटरी मोशन हो गया, बल्ला रिजिड बॉडी है तो कंपाउंड पेंडुलम हो गया, मोशन का पिवट पॉइंट ओ हो गया जहां पर हाथ से आपने उसको पकड़ रखा है। और अगर आप किसी तरीके से ये सेंटर ऑफ परकशन पता कर पाए तो वहां पर एक छोटा सा निशान लगा सकते हैं अपने बैट पे। और ये जो है ये काफी सारे बैट मैन्युफैक्चरर्स करते भी हैं। दे पुट अ साइन ऑन योर बैट कि भाई ये जो पैच है ना इस पे बॉल लगनी चाहिए आपके, इस तरह से खेलो, और उसको वो स्वीट स्पॉट कहते हैं। दे कॉल इट एज अ स्वीट स्पॉट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ परकशन क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है अगर पूछे तो ये है, बेसबॉल बैट्स हैव स्वीट स्पॉट by identifying the center of percussion by treating them as a rigid compound pendulum, ठीक है। तो ये है अपना कंपाउंड पेंडुलम एंड सेंटर ऑफ परकशन का आज का टॉपिक। इसमें से कुछ टॉपिक जो है मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दिया है, बट आई एम टेलिंग यू वंस अगेन दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ये पार्ट आप रीड करें, सेकंड वाला पार्ट आप रीड करें, और जो भी कन्वीनियंट आता है उसको समझ के याद कर लो। और ये इसके बाद वाले जो 2 एडिशनल नोट हैं इसको भी पढ़ो, ठीक है। नोट्स मैंने आपको बना के दे ही दिए हैं। डू अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज डन हियर देन यू टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास। ये आपको करना है। यस सर। Yes, sir. So we will stop the lecture here, but don't go away. I will take your attendance.